پتا نہیں سچی کہہ رہے ہیں. انڈس ویلی کے بارے میں, انڈس ویلی سیولائزیشن کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا, وہ بتا رہی تھی آپ, اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کریے آپ. انڈس ویلی سیولائزیشن کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو میں تو حیرت زدہ رہ گئی. میں نے کہا اتنی رچ انڈس ویلی, وہ میرے ملک میں موجود ہے. مجھے کبھی بتایا ہی نہیں گیا, ہمارے بچوں کو کبھی پڑھایا ہی نہیں گیا انڈس ویلی کے بارے میں. یہ کون سی رچ سیولائزیشن ہے؟ یہ وہ سیولائزیشن ہے جب, پتہ کیا ہے, میں نے اتنا ڈیپلی ان تہذیبوں کو پڑھا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ انڈس ویلی تب کی سیولائزیشن ہے جب ابھی باقی میسوپوٹیمین اور باقی سیولائزیشن ابھی کرالنگ کر رہی تھی. تب یہ پیک پہ تھی. انڈس ویلی سیولائزیشن تب پیک پہ تھی جب باقی تہذیبیں ابھی کرال کر رہی تھی. یہ اتنی رچ تہذیب ہے, اتنی بہترین سیولائزیشن ہے. تو ان کا جب میں نے آرٹ, ان کے مجسمے, ان کا وہ تجارت, جب میں نے ان کی چیزوں کو پڑھا, میں نے کہا کہ یہ تو اسلام سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے. 1000 سال گزر گئے اس تہذیب کو. تو اس سے بعد والی تہذیب جو محمد صاحب کی تہذیب ہے, جس کی میں پیروکار تھی, میں ماننے والی تھی, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں کیا ہے, آپ پورا ان کا وہ اٹھا کے دیکھ لیں, کون سی معاشرت ہے اس میں, کون سی قاعدے قانون ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بہتر تو حمورابی کا کوڈ آف کنڈکٹ تھا, اس میں 285 سکے تو موجود ہیں نا. اس میں کیا ہے کہ آپ نے اس ہاتھ سے یہ کام کرنا ہے, آپ نے اس ہاتھ سے وہ کام کرنا ہے, آپ نے ٹخنوں تک شلوار رکھنی ہے, آپ نے ٹخنوں سے نیچے رکھنی ہے, آپ نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا, آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے وہ نہیں کرنا. یہ انسان ہیما جی, میرے کو سچی ہنسی آ گئی یہ جو آپ نے بتایا, سلوار ٹکنوں کے اوپر رکھنا ہے. میرے کو یہ ابھی جب مومن حضرت تھے تو میں یار, وہ میری کتنے ساری جینز اور وہ جو میری ٹراؤزر ہوتی تھی اس کا میں نے ستیہ ناش کر دیا تھا, اس کو ٹکلے سے اوپر کرنے کے چکر میں, تاکہ جو ہے وہ سنت پہ عمل ہو. اور وہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث, رسول محمد صاحب کی حدیث, کہ جس کا کپڑا جو ہے وہ ٹکنے کے نیچے رہے گا, وہ اتنا حصہ اللہ جو ہے وہ جہنم میں جلائے گا. تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے جو ہے کئی سارے کپڑوں کی میں نے بینڈ بجا دیا تھا. آفس میں کام کرتا تھا, کلائنٹ میٹنگ پہ جاتا تھا, تو وہ یار جوکر لوگ کی طرح وہ پینٹ اوپر, جیسا وہ MLM والے جو ہے وہ نہیں پہنتے, وہ نیچے سے پینٹ ان کی اوپر ہوتی ہے, ویسا میں بھی پہنا کرتا تھا. تو اگر اس کو آپ جو ہے تھوڑا یہ اپنگتا سے نکل کر سوچے, آپ سوچو یا, اور یہ مومن حضرات جتنے سن رہے ہوں گے ابھی, میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ کپڑا اگر آپ کا پیجامہ, آپ کی سلوار ٹکنے کے نیچے ہے تو اس کو جہنم میں اللہ جلائے گا اتنا حصہ. یہ کیسا خدا ہے رے بھائی؟ یہ اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی, اتنا بڑا یونیورس, ملٹی ورس کا بھی کانسیپٹ ہے, اس میں ایک جے بھر کا ایک ہماری دنیا ہے, اس میں انسان ہے, اس کے کپڑے نیچے ہے تو اس کو اتنا حصہ جلائے گا. یعنی یہ کیا بات ہے؟ اس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جس نے یہ قانون بنائے, جو یہ بات بتا رہا تھا, یہ اصل میں اس کے دماغ کی سوچ تھی. اس کو لوگوں کو ڈرانا تھا, آپ لوگوں کو, تاکہ آپ ان کے وش میں رہے, ان کے کنٹرول میں رہے. اور کسی کو کنٹرول کرنا ہے, ہمیشہ میں کہتا ہوں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہے, ایک ڈر اور ایک لالچ. تو یہ ڈرایا گیا تھا آپ لوگوں کو, یہ ڈرایا گیا ہے کہ ٹکنے کے نیچے کپڑا رہے گا تو اتنا حصہ اللہ جہنم میں آپ کو جلائے گا. یہ سب بونگیاں ہے. تھوڑا سا اپنا دماغ جو ہے نا وہ اس کا استعمال کرو اور سوچو, آپ کو ادھر نظر آئے گا کہ یہ انسانی سوچ تھی لوگوں کو کنٹرول کرنے کی. تو بڑی کامیڈی کی بات ہے یہ کہ ٹکنے کے نیچے کپڑا رہے گا تو وہ اللہ جو اتنا حصہ جلائے گا. جی ہائمہ جی. مجھے نا آرٹ سے بڑی دلچسپی تھی, کیو آرٹ سے, غاروں میں جو تھے آرٹ, اس سے جو مختلف قوموں میں آرٹ رائج تھا اس سے. لیکن جب میں اسلام میں دیکھی تھی نا کہ آرٹ سے مطلب آرٹ میں ان کا آرٹ ہے کیا, گنبد, ٹھیک ہے, جب میں نے گنبد کی حقیقت کو پڑھا, جب میں نے مینار کی حقیقت کو پڑھا, میں تو شوق رہ گئی. میں نے کہا یہ گنبد اور مینار کس چیز کو کر رہے ہیں,
ये किस चीज को बता रहे हैं। बट बात हो रही थी इंडस वैली की। मैंने जब उनकी सिविलाइजेशन को पढ़ा, इतनी इतनी रिच थी वो सिविलाइजेशन। और फिर मैंने जब अपने इस्लाम के साथ उनका मुवाजना किया, मतलब उस सिविलाइजेशन का मैं इस तरह से करती थी, उनकी उनकी आर्ट को एक साइड पे, मतलब एक आर्ट को देखना, एक उनकी तजारत को देखना, उनकी एजुकेशन को देखना, उनकी वहां पे औरतों का मुकाम वो देखना, औरतें किस किस तरह से काम कर रही थी उस सिविलाइजेशन में, क्या मुकाम था औरत का वहां पे, क्या डीलिंग थी उनकी, कौन कौन से वो देवता थे या जिनकी वो पूजा करते थे। सारे पहलुओं को जब पढ़ने के बाद, जब मैंने इस्लाम की तरफ वापस पढ़ने पढ़ने के लिए से दोबारा रुख करना इस्लाम का, तो मुझे इसमें प्रायोरिटी के इसमें इसकी जो है ना, इस जो कल्चर जिसे हम कहते हैं ना, उसको रिच करने के लिए कोई चीज नहीं मिली इसमें। कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो एक जो आर्ट लवर को ना वो मुतमिन कर सके। तो मैं आर्ट लवर शुरू से नहीं थी, लेकिन मैं जब सकाफतों को पढ़ना, तहजीबों को पढ़ना शुरू किया ना, तो मैं आर्ट लवर बन गई। मैं तो मबहूत हो जाती थी मुजस्मों को देखकर, बड़े बड़े। मैंने कैलाशनाथ मंदिर को जब मैंने उस पर पढ़ा ना, कैलाशनाथ मंदिर को, कि उन्होंने ऊपर से तो चोटी से वो काट के तो वो मंजर बनाया था, मैं वाकई फैन हो गई उस आर्ट की। मैंने कहा आर्ट तो ये है भी, आर्किटेक्चर तो ये है कि एक पहाड़ को काट कर इतना नायाब उन्होंने ये चीज बना दी, और ये एप्रिसिएशन के काबिल है, जिससे ये लोग इतनी नफरत करते हैं कि वो मंदिर बन गया तो ये उसको ढाने पहुंच जाएंगे, लेकिन उसकी एप्रिसिएशन नहीं करेंगे। मतलब इनकी बाइसनेस इतनी है। ये तो तहजीबों के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ ना, जो चीज मुझे इरिटेट करी या जो चीज मुझे नापसंद थी इसमें, कि जिन चीजों को हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एक आम फितरी इंसान के, जिसकी खूबसूरती से हमें महसूस होना चाहिए था कि हम उसको देखकर हम खुश होते हैं, हम उसको नफरत की निगाह से देख रहे हैं। उन चीजों को, उन चीजों से हम नफरत कर रहे हैं सिर्फ मजहब की बुनियाद पर, कि वो जी किसी और मजहब के पैरोकार ने वो चीज बना दी है, तो इसलिए वो ना, उससे मैं नहीं खुश हो सकती, मैंने उससे नफरत ही करनी है। लेकिन मैं नफरत नहीं कर पा रही थी इन चीजों से। मुझे यूं लगता था जैसे मैं हायमा इन्हीं जी, चीजों से इवॉल्व। जी। हायमा जी, आपको बताना मैं चाहूंगा कि ये जो टेम्पल की आप बात कर रही हैं, कैलाश टेम्पल या हम्म। कैलाश केव भी कहते हैं उसको, हाँ हाँ। इसका यहाँ पे मैं अभी मेरे ख्याल से 4-5 महीना पहले मैंने विजिट किया है, और मैंने एक व्लॉग भी बनाया है, आप मेरे चैनल पे वो जरूर देखिएगा। और अगर नोमैड भाई होते तो अभी लिंक शेयर कर देते, अगर समर भाई है तो वो लिंक शेयर कर देना, कैलाश टेम्पल व्लॉग वाली। उसमें मैंने बताया है कि वो कितने साल 1700 उसका जो ये जब किया गया, क्या कहते हैं उसको, डेटिंग करते हैं ना, व्हाट यू कार्बन से, डेटिंग। कार्बन डेटिंग। हाँ, कार्बन डेटिंग जो की है, तो वो 1700 साल पुराना वो आर्किटेक्चर है। आप सोचो कि 1700 साल पहले टेक्नोलॉजी, अगर हम सोचे, हम समझते हैं कि यार आज की टेक्नोलॉजी हमारी जो है वो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन नहीं नहीं। आज हमारे पास तो सब कुछ है, हर एक मशीन है, टूल्स है। आप सोचो कि वो लोगों के पास तो हमारी जैसी मशीन्स भी नहीं थी, उसके बावजूद भी वो कितने 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 जहीन होंगे वो लोग। आज तो हमारी सारी जो ड्राइंग है वो सारी कंप्यूटर्स पे बनती है, 3D में बनती है, राइट। एक बिल्कुल। मॉडल बनता है, फिर वो बनाया जाता है, आसानी होती है कोई भी चीज बनाने के लिए। वो टाइम पे तो 3D टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, मशीन्स नहीं थी। उनका दिमाग कितना जबरदस्त चला होगा कि वो पहाड़ को कार्विंग करते 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 उन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया, 1700 साल और पहले, यानी और रसूलुल्लाह साहल से भी पहले। और साहल वो ऊपर से टॉप से वो क्रैविंग कर रहे हैं उसकी, उधर से वो उसको काट काट के काट के उसको मत बना रहे हैं। टॉप से स्टार्ट किया था। मैं इतनी फैन हो गई ना, मेरा इतना दिल है कि मैं जब कभी मौका मिला ना, मैंने वो कैलाशनाथ जो आपके मंदिर है उनमें से 34 ओपन है, बाकी बंद है, वो 100 मंदिर है मेरा ख्याल, तो मैं उन लाजमी उनको देखना चाहूंगी बनने से एक बार पहले। मुझे इतना वो फैसिनेट करता है वो मंदिर, कि वो मैं वाकई इतनी फैन हो गई कि तब इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो बसाल्ट की जो चट्टान है उसको पता नहीं कैसे तोड़ा और इतना बेहतरीन मंदिर बना दिया, इतना बेहतरीन मंदिर बना दिया। तो जब मैं इस्लाम पे अच्छा, वापस वही देखती चीज थी तो अभी इस्लाम। हाइमा जी,
हाँ, आप भी शायद, मैं जो सोच रहा हूँ वही आप सोच रही है कि आप फिर वही कंपेयर कर लो 1400 साल पहले रसूलुल्लाह की टेक्नोलॉजी को। हाँ इनके पास तो हाँ हगनपुर के लिए घर में टॉयलेट्स भी नहीं थे, यानी ये इतने पीछे थे टेक्नोलॉजी में कि इन्होंने कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं किया। मैंने बाकायदा इस पे 2 एपिसोड्स भी किए हैं, मोमिनों से पूछा है कि क्या किया, तो बड़े अजीब 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 मोमिन हजरात जो अपने दिमागी अपंग दिमाग से उन्होंने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह ने क्या क्या टेक्नोलॉजी दुनिया को दी। लेकिन अगर हम देखें तो रसूलुल्लाह ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी दुनिया को। उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम आता था, जंग करना, गर्दनें काटना। और क्या आता था उनको? उन्होंने क्या किया? कौन सा स्ट्रक्चर बनाया? कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल। इस टेक्नोलॉजी को पढ़ के तो मैं इतनी हैरान हुई कि ये तो इस्लाम से भी पहले की टेक्नोलॉजी है। जिन लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी थी, हम जो इस्लाम था उसने उनसे नफरत करना सिखाया है कि ये जो है मजहब की बुनियाद पर नफरत करें इनसे, कि ये मंदिरों में हम झांकते नहीं है, मंदिरों को हम बुरी मतलब नफरत से देखते हैं। जब मैंने इनकी टेक्नोलॉजी को पढ़ा, मैं तो भाई फैन हो गई। मैं तो हिंदू हिंदू मजहब को मैंने फिर उस टेम्पल की वजह से मैंने हिंदू मजहब को पढ़ना शुरू किया। एक तो वो जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी वजह से मुझे लॉ हुई हिंदू मजहब की। और इसके बाद मैंने टेम्पल्स को जब पढ़ा, वहां पे इनकी जो एस्ट्रोनॉमी से मुतल्लिक मालूमात है, और ये बड़ा शॉकिंग किस्म का था कि चले आप सब कहते हैं कि लोग ये जो है वो पामिस्ट्री या जो भी है ये फॉल्स है, लेकिन काम काम तो उस पे हुआ था ना। उन्होंने सितारों के नाम रखे, उनकी पोजीशन को डिफाइन किया। पुरानी तहजीबों की बात कर रही हूँ, तो अपना अपना इनपुट तो सबने दिया। तो ये कैलाशनाथ मंदिर को जब मैं पढ़ रही थी, तो वहां पे जो मंदिरों की सीरीज है वो कोई खास पैटर्न को जाहिर करती है, खास किस्म के पैटर्न को। तो ये चीज मुझे बड़ी अट्रैक्ट की कि मैंने कहा कि वो जहनी तौर पर कितने फर्टाइल लोग थे, कितने जहीन लोग थे, जिन्होंने कि उनके पास तो इस अब वाली टेलीस्कोप भी नहीं थी, अब वाली सहूलतें भी नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने पोजीशंस को सही से डिफाइन किया, सितारों की पोजीशंस को उसकी बुनियाद पर उन्होंने कायनात की बुनियाद पर जितना वो जानते थे, उन्होंने अपने मंदिरों को भी बनाया। वो एक खास किस्म का सीक्वेंस जाहिर करता है उसमें। वो जो आपके 100 मंदिर है कैलाशनाथ में, एलोरा के पता नहीं कौन सा, इलाहाबाद में। अच्छा, आप तो मैं हाय माँ जी, सॉरी मैं बीच बीच में टोक रहा हूँ, मेरी बहुत बुरी आदत है ये टोकना, आई एम रियली सॉरी, नहीं नहीं क्योंकि बोलिए, आप बोलिए। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड भी करना होता। अच्छा, आप ठीक है, आपका बड़ा दिल है कह रहा आपकी आवाज कट रही साहिल आपकी। देखना है और बाकी ऐसी बहुत। अच्छा, अब ठीक है क्या? हेलो, आवाज अब ठीक है? हाँ ठीक है। अब सही आपको भी है। आज पहले बिल्कुल नहीं नेटवर्क ढूंढना आपकी। है साहिल भाई। हाँ दोबारा रिपीट कर अमित, दें अभी आ साहिल रही है भाई, ना क्या आवाज था मेरी? आपको बोल रहे? हाँ आवाज आ रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको भी नेटवर्क ढूंढना आ जाए माजी की तरह घूम घूम के। हाँ, आज अल्लाह का अजाब आया हुआ है ना। आज इतनी पढ़ी लिखी और इतनी जहीन एक्स मुस्लिम आई है, तो वो अल्लाह को भी ऊपर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो सोच रहा है कि चलो कभी आयमा जी के इंटरनेट में मसले डालता हूँ और कभी जो है वो साहिल के इंटरनेट में मसले डाल देता हूँ। कोई मुश्किल नहीं, हम फिर भी कोशिश करेंगे। तो मैं ये कह रहा था हायमा जी कि आपने कहा कि आपका बहुत दिल है कि आपको कैलाश टेम्पल देखना है, और बाकी ऐसी बहुत सारी हमारे भारत में आर्किटेक्चर्स आपको मिलेंगे, एक से एक एकदम। लेकिन एक चीज जब आएंगी आप, और अगर आप आती है तो हम आपको जरूर सारे टेम्पल्स दिखाएंगे। मेरा भी प्लान है बाकी जगह भी जाने का। तो आप लेकिन एक चीज देखोगे कि ये ऐसी जितनी जगह है वहां पे जो मूर्तियां हैं, जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो बाहर से जो लोग आए थे ना, कमीने, हमारे देश पे कब्जा करके लूटने के लिए, यहाँ की औरतों पे उन्होंने, मर्दों को मारा, औरतों के साथ जो है वो रेप किया, लोगों को मजबूर किया इस्लाम कबूल करने में। तो ये इतने हरामी थे कि इन्होंने जाकर उन मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की। बहुत सी जगह पे ये तोड़ नहीं पाए, तो इन्होंने क्या किया, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई हम तो तोड़ नहीं पा रहे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो मूर्तियों की जो का फेस था, इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया। किसी की नाक तोड़ दी, किसी का कान तोड़ दिया। आप
जो पुरानी पुरानी मंदिर में अगर आप जाएंगे, वहां पे जो मूर्तियां हैं, उसमें आपको मूर्तियां जो है वो किसी का नाक टूटी हुई, किसी का फेस खराब किया, किसी का कान तोड़ा है, इस तरीके से इन्होंने काम किया जब नहीं तोड़ पाए पूरी तरीके से। तो ये इतना हरामीपन इनके अंदर था, इतनी चिढ़ थी मूर्तियों से। बनाए तो कुछ नहीं, लेकिन तोड़ने में बड़े एक्सपर्ट थे ये लोग। ये टेक्नोलॉजी में सिफर थे वाकई, लिटरली ये सिफर थे इस टेक्नोलॉजी में, इस आर्ट में। ये इतना बेहतरीन किस्म का आर्ट है कि आप इसको देखकर सुकून महसूस करते हैं। मैं इसको पढ़ के इतना सुकून महसूस कर पा रही थी, तो जिन लोगों ने बनाया था या जिनके सामने था वो कितना उससे सुकून महसूस करते होंगे। तो ये तो मैं जुबान क्या इनके लिए यूज करूं कि ये बहुत दूर थे इन चीजों से, ये फितरत से है ही बहुत दूर थे। ये दीन फितरत कहते हैं ना, तो मैं आपको गिनवा सकती हूँ कि कौन कौन सी फितरत किस किस चीज के ये खिलाफ है। सबसे पहली बात तो ये औरत की फितरत के खिलाफ है। ये दीन फितरत जिसे कहते हैं ना, ये जो अल्लाह जिसको ये कहते हैं, जिसका ये फेक आईडी यूज करते हैं, अल्लाह, वो अल्लाह जिसने कायदे और कावानीन हम मेरे लिए बनाए हैं ना एज अ वुमन, वो मेरी फितरत से मैच ही नहीं। इस वो अल्लाह जिसने मुझे तख्लीक किया, जिसने मुझे बनाया, उसको ये नहीं पता था कि मेरे मूड स्विंग भी चलते हैं, मेरा मंथली एक साइकिल है, तो मैं हर वक्त बिस्तर पे जाने के लिए तैयार नहीं रह सकती। लेकिन नहीं, फरिश्ते लानत करेंगे मुझ पे। क्यों? नहीं तो मेरे अल्लाह को मेरा ये नहीं पता, ये मेरे हाइमा मूड जी स्विंग का आप नहीं पता। हाइमा जी आप इस्लामोफोबिक है। आपने अल्लाह की कुदरत को आपने समझा ही नहीं। फीमेल्स को मंथली साइकिल आता है और उसको ज्यादा परेशान शौहर ना करे, इस वजह से तो अल्लाह ने 4-4 अलाउ किया है ना, कि एक को आ गया तो दूसरी के पास चले जाए, तीसरी के पास चले जाए, ये चौथी के पास चले जाए। तो ये तो आपके लिए अल्लाह ने सोच के ये मौका दिया है मर्दों को कि 4-4 शादी करो। तब मैंने सोचा साहिल भाई, तब मैंने सोचा कि ये जिसने बनाया है ना कायदे कानून, उसने मुझे सामने रख के नहीं बनाया। ये किसी मैन मेड का बनाया हुआ है, ये किसी मर्द का बनाया हुआ एक कायदे कानून है, जिसमें उसने खुद को ही फेवर दी है, जिसने उसने उसमें खुद को ही नवाजा है, खुद को ही हर जगह मुकद्दम रखा है। यहाँ पे दुनिया में मेरा एज अ वुमन मैं इतना कुछ करती हूँ, इस्लाम में इतना कुछ करती हूँ, मेरी गवाही आदि है, मैंने कबूल कर लिया, ठीक है, एज अ वुमन। मैं घर में बैठी हुई हूँ, मेरी जो है वो एजुकेशनल ग्रोथ है, उसको कट डाउन कर दिया, मैं चुप करके बैठी हुई हूँ, ठीक है। मेरा सोशल इंटरेक्शन नहीं है, इजाजत नहीं है एज अ मुस्लिम वुमन, मैं चुप करके बैठी हुई हूँ। मैं इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर दिन में थक के रात बिस्तर पे नहीं जाती शौहर के साथ, तब मैं बुरी। इसके अलावा जब रसूलुल्लाह मेराज पे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जहन्नम में भी औरतों को ही देखते हैं। ये बात भी मुझे हजम नहीं होती थी कि मैं इतना कुछ यहाँ पे सहूं, इतना कुछ करूं, इतना कुछ अपने जज्बात को खत्म कर दूं, अपने आप को मैं खत्म कर दूं, तब भी मैं इसमें इतना सख्त म्यार है, ये किस किस्म का म्यार है कि मैं उसमें पूरा ही नहीं उतरती। अब मैं जब मरने के बाद भी मैं जहन्नम में खुद को देखूं कि मोहम्मद साहब मुझे वहां पे देख रहे हैं, और जवाब जब औरतों ने पूछा कि या रसूलल्लाह कि हम क्यों वहां पे ज्यादा है, तो आगे से जवाब आया कि तुम अकल में आदी नहीं हो, तुम जुबान दराजी नहीं करती अपने शौहर के साथ। अकल में आदी की कौन सी लॉजिक है भाई? जिसने मुझे बनाया है वो मुझे पूरी अकल दे देता, बकौल इनके मैं बात कर रही हूँ आधी अकल की। वैसे मैं फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बात नहीं कर रही, साइंसी नुक्ता नजर से बात नहीं कर रही, मैं बकौल इस्लाम के बात कर रही हूँ कि अगर उसके बकौल मुझे आधी अकल है, तो बनाने वाले ने क्यों मेरे साथ ये बाइसनेस की? जिस खालिक ने मुझे तख्लीक किया है, उसके पास क्या चीजें कम पड़ गई थी कि उसने मुझे आधी अकल दी है? कोई आधी शादी अकल नहीं थी, आधी गवाही भी इसी बुनियाद पर थी कि आधी अकल है आपको, इसलिए आप चीजों को या उस वाक्य को सही तरह से ना आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए आपकी गवाही आधी है। अब बंदा खुद सोचे कि एक जो बंदा है वो एक पूरा मतलब एक कंट्री चला रहा है, एक वुमन जो है वो कंट्री चला रही है, तो उसके दफ्तर के बाहर जो एक बंदा खड़ा है उसकी गवाही पूरी है, और जो औरत जो है वो ऑफिसर है, वो अंदर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी गवाही आधी है। तो ये बात मुझे ना हजम नहीं हो रही थी। अगर मैं एक मर्द होती तब भी मुझे ये चीज हजम ना होती। अब तो मैं औरत थी,
اور میں اتنا کچھ اسلام کے لیے کر رہی تھی, اتنا کچھ کر رہی تھی, اللہ کے لیے کر رہی تھی, اسی قرآن کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں راتوں کی نیند حرام کی ہوئی تھی. تو میں تو بڑی کٹر قسم کی مطلب والہانہ محبت کرتی تھی اللہ سے. تو میں اپنے لیے اس قسم کے جو یہ جو تھی نا نفرت اور باعثنس, وہ مجھے ہلا رہی تھی اندر سے کہ جس کو میں جانتی ہوں نا یا جو میں سمجھتی ہوں, یہ اس اینٹی کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ اس خالق کا بنایا ہوا کچھ نہیں ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات تخلیق کی ہے, اتنی بڑی کائنات تخلیق کی ہے کہ ہماری زمین ریت کے ذرے سے بھی کچھ چھوٹی مائکرو آرگنزم سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا کوئی ہو نا, کوئی بہت بڑا سمندر ہو تو اس میں ایک مائکرو آرگنزم جو آپ دیکھنا چاہیں نا مائکروسکوپ پہ, تو اس سے بھی کم حیثیت ہے زمین کی. تو اس خالق کو یا اس بنانے جس کو اللہ کہتے ہیں, اچھا اللہ کی حقیقت بھی دیکھ لیں. میں اللہ کا نام بڑے ہی ادب سے اور بڑے ہی والہانہ انداز میں لیتی تھی اللہ کے مطلب دل کو سکون دینے کے لیے. تو جب میں نے کعبے میں موجود 360 بتوں کے بارے میں پڑھا ساحل جی, تو میں تو حیران رہ گئی. اللہ 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 یہ نام تھے ان کے. میں نے کہا اوف اللہ, اب میرے منہ سے اللہ نکل رہا ہے. بھائی تم تخلیق کار کا نام تو بتوں سے ہٹ کے کوئی نیا لے آتے. یہ کاپی پیسٹنگ کے اگر میں بتاؤں نا آپ کو تو گھنٹہ لگ جائے جو جو مجھے کاپی پیسٹنگ ملی ہے اس کام میں. واقعات تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کاپی پیسٹ جو سمیرین ٹیبلٹ سے ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو روزمرہ زندگی میں یہ چیزیں کاپی پیسٹ ہوئی نا, اس کی بھی ایک لمبی لائن ہے. اب نمازوں کے اوقات پہ ذرا میں بات کرتی ہوں. نمازوں کے جو اوقات ہیں, جب میں نے تہذیبوں کو پڑھنا شروع کیا نا, مذہب کا ارتقاء کہ مذہب کہاں پہ ایوالو ہوا, کہاں پہ سب سے مذہب آیا کیسے. تو جب قدیم جو قدیم قبیلے تھے وہاں پہ جہاں پہ بادشاہت یا ایک قبیلے کا سردار کا کنسیپٹ نہیں تھا نا, وہاں پہ کسی معبود کا کنسیپٹ بھی نہیں ملے گا آپ کو. آپ پڑھ لیں سارے لوگ, آپ ان قبیلوں کو پڑھیں, پرانی ہسٹری کو پڑھیں, جہاں پہ لوگ سکیٹرڈ رہتے تھے, الگ الگ رہتے تھے. وہاں پہ کوئی سردار نہیں تھا, اکول تھے وہاں پہ مرد اور عورت اپنے حصے کا کام کرتے تھے, غاروں میں رہتے تھے. مرد جو تھا وہ شکار کرنے جاتا تھا, عورت جو تھی وہ ساتھ جاتی تھی اس کے. مرد نیزے سے شکار کرتا تھا, عورت اس کی ساری کھال اتار کے گوشت بنا کے اپنے واپس غار میں لے کے آتی تھی, وہ اس کو محفوظ کرتی تھی, وہ پکاتی تھی. اس عورت نے اپنے جسم کی طرز پر ہی چیزوں کو برتن بنانا سیکھا. پیالہ جو ہے اس نے اپنی چھاتی کی طرز پر پیالہ بنانا سیکھا. آپ دیکھیں جتنے بھی شروعات ہے نا وہ انسانی جسم سے ہی ہے. انسانی جسم کو سامنے رکھ کر ہی ہم نے چیزوں کو بنانا سیکھا ہے. پیالہ جو ہے وہ اپنی چھاتی کی طرز پر اس نے پیالہ جو ہے اس کو بنانا سیکھا, اس میں چیزوں کو پرزرو کرنا سیکھا, اس نے چیزوں کو پیش کرنا سیکھا. یہ شروع کی بات بتا رہی ہوں کہ جب دونوں اکول تھے, مین اور وومن, مرد اور عورت دونوں اکول تھے جب ہم غاروں میں رہتے تھے. جب ہم جٹ مطلب کچھ قبیلوں کی شکل میں یا کچھ خاندان کی شکل میں رہنا شروع ہو گئے, خاندان ایک بڑا بزرگ جو تھا اس کو ہم نے بڑا کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے سیانا ہے, یہ سب کے صحیح فیصلے کرے گا. یہ غاروں میں ہی ہم نے یہ کام شروع کر دیا. تو ان لوگوں میں جب وہ مظاہر فطرت کو دیکھتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ یہ جو بادل ہے نا اس کو کوئی چیز چلا رہی ہے, یہ جو بجلی ہے نا اس کو کوئی چیز چلا رہی ہے, یہ جو سورج ہے نا اس کو بھی کوئی چیز چلا رہی ہے. تو جب میں نے محمد صاحب کی ایک حدیث دیکھی کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے خود پوچھا کہ تمہیں پتا ہے یہ سورج جو ہے کہاں جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ, اللہ اور اللہ کے رسول کو پتا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ ہر روز جب جاتا ہے تو یہ عرش کو سجدہ کرنے جاتا ہے. جب اس کو پرمیشن ملتی ہے اگلے دن کی نکلنے کی, اس لیے یہ آتا ہے. اب جس اس کو پرمیشن نہ ملی اس نے آنا نہیں, اس نے نہیں آنا. تو جو یہ آپ خود سوچے, جس نے بلیک ہول کے بارے میں پڑھا ہو, جس نے ہبل ٹیلیسکوپ کی پکچرز کو اینالائز کیا ہو, اس کو ایکسپلین کیا ہو, آپ اس کے سامنے یہ حدیث رکھیں کہ یہ جو سورج ہے نا یہ عرش پہ سجدہ کرنے جاتا ہے اور سجدہ کر کے واپس آتا ہے. جس دن اس کو پرمیشن نہ ملی یہ اس نے نکلنا نہیں, اس دن قیامت آنی ہے. تو آپ کہیں گے بھائی یہ کس چھوٹے بچے کس نے بونگی ماری ہے یہ والی. بھائی سورج اپنی جگہ پہ وہیں پہ موجود ہے, وہ کہیں نہیں جاتا. یہ زمین ہے جو پیار میں اس کے چکر لگا رہی ہے. تو میں نے کہا نہیں بھائی نہیں, محمد صاحب کو علم نہیں تھا, انہوں نے سنی سنائی باتیں بتائی ہیں, ان کو تو ٹیکنالوجی کا کخ بھی علم نہیں تھا, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا
کہ सूरज क्या है और किधर है उसकी है ना, बड़ी मुश्किल से निकली हूँ मैं, बार बार कोई ना कोई बहाना लेती थी, मतलब कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत हो आप उसके लिए 100 बहाने 100 वजूहात भी हो ना, आप छोड़ते नहीं है, सिर्फ एक वजह आपको मिल जाए ना चिपकने की, आप चिपक जाते हैं उससे। तो मैं 100 चीजें ढूंढ के बैठी हुई थी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मैं कोई एक बहाना ढूंढ रही थी, कोई एक सॉलिड रीजन मुझे मिल जाए इसकी सच्चाई की। तो ये जब मैंने इसका बारे में सूरज के बारे में पढ़ा, तो मैं तो हबल टेलीस्कोप को पहले पढ़ चुकी थी और बाकी उनको कॉस्मोस को बाकी सबको मतलब पढ़ चुकी थी। मैं स्टीफन हॉकिंग की सारी किताबों को मैं क्या कहते हैं घोल के पी गई थी। स्टीफन हॉकिंग को मुझे फिजिक्स में बड़ी दिलचस्पी थी, तो मैंने तो ब्लैक होल और उससे परे और पता नहीं व्हाइट होल और कौन कौन से वो टाइम ट्रेवल और पता नहीं क्या कुछ पढ़ चुकी थी। तो ये मेरे कहाँ पे मेरे गले से उतरनी थी ये वाली हदीस, अटक गई ये हदीस मेरे गले में। मैंने कहा नहीं भाई ये बात गलत है, ये ऐसे नहीं हो सकता जो बताया जा रहा है। फिर मैंने जुल्करनैन का किस्सा पढ़ा। जुल्करनैन के किस्से में बताया गया था सूरज वो उन लोगों पे पहुंचा जहां पे सूरज कीचड़ में गरूब हो रहा था। तो कीचड़ में गरूब होने का मैंने पता क्या किया, मैंने कहा हाँ ये ब्लैक होल में गिर रहा होगा, ये मैंने खुद की जलेबी बनाई ना, मैंने कहा ये ब्लैक होल में गिर रहा होगा। तो इसकी साइंटिफिक जो थी ना, मैंने एक्सप्लेनेशन खुद से बड़ी करने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी कामयाब नहीं हुई। मैं थक गई, मैं थक गई इसको सही साबित करते करते, लेकिन इसने मुझे झूठा साबित कर दिया कि जो जिसको तुम लेके चल रही हो ना ये है ही गलत, ये झूठ है जिसको तुम जिसके पीछे तुम पड़ी हुई हो। अच्छा मैंने कॉपी पेस्टिंग का बताती हूँ अपने सुनने वालों को कि इस्लाम में कॉपी पेस्टिंग क्या है। इसमें नया कुछ भी नहीं है। अल्लाह का जो लफ्ज है ना वो भी अल्लाह और अल्लाह, अल्लाह जो 360 बुत थे ना काबे में, उनमें अल्लाह मनात और ये सब नाम है। उसमें हम जो पढ़ाते हैं ना अपने बच्चों को यहाँ पे वो लाम अलिफ लात लात पढ़ाते हैं, हम अल्लाह नहीं पढ़ाते। लिखा जो किताबों में है ना हमारे इधर वो लात ही लिखा हुआ है, LAAT लात, लेकिन जो असल लफ्ज है वो अल्लाह है। और इन सब के ऊपर एक बड़ा सुप्रीम देवता या सुप्रीम बुत इडल था जिसका नाम था अल्लाह। तो जब मैंने पढ़ा उसके नाम को मैंने कहा ये कूटे से निकला लफ्ज है अल्लाह। फिर आते हैं नमाज के औकात की तरफ। जब मैंने ये मजहब का इत्तिका पढ़ा ना कि मजहब इवॉल्व कहाँ से हुआ था, कैसे बना, कैसे कैसे कौन कौन सी शक्लें, जब मैं आप मुख्तलिफ तहजीबों को पढ़ते हैं ना तो आपको ये जानने में बड़ी आसानी होती है कि इंसान ने शऊरी तौर पर किस तरह से फासला तय किया। तो ये नमाजों के औकात अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, आप जानने की कोशिश करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर इस्लाम में नमाजों के औकात को आप पढ़ना चाहेंगे तो आप सूरज परस्ती वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पे सूरज जो थे सूरज देवता की पूजा की जाती थी। तो नमाज के औकात वहां के उनके उनकी बात बता रहे हैं, उनकी नमाज के औकात सूरज से मुंसलिक थे। ठीक है, सूरज जैसे तुलू होता था खुशी के, या जैसे उसकी शफक या उसकी सूरज की आमद आमद नजर आ रही है ना आपको, तो बड़े मोहब्बत के साथ इबादत पूजा पाठ उनकी की जाती थी, जो भी उनके तरीकाकार थे। तो इसके बाद अपने कामकाज में मगन हो जाना। इसके बाद जैसे ही सूरज ढलने की कोशिश करनी, जैसे जिसे हम मगरिब कहते हैं, 2 बजे का टाइम तकरीबन, तो तब दिल में वसवसे उस कौम के आने शुरू हो जाने कि भाई हमारे, उनका ये मानना था कि हमारे हुक्मरान से गलती हो जाती है, या हुक्मरान ने जिसको पावर डेलीगेशन अपने वो डेलीगेट किए हुई ना पार्ट हुक्मरान ने, उनसे कोई कोई ना कोई ऐसी खता ऐसी गलती कोई हो जाती है कि सूरज देवता जो है ना वो नाराज होके वो ढलना शुरू कर देता है, वो जाना मतलब मंजिल से हटना शुरू कर देता है। तो जोहर के टाइम जिसको हम जोहर कहते हैं मुसलमान, उस टाइम उन्होंने ना इबादत करनी थोड़ी सी कि मतलब कि ये नाराज ना हो। इसके बाद जब साये दोगुने लंबे हो जाने तब भी इबादत करनी कि अब तो पक्का सूरज देवता जा रहा है। और जब सूरज गरूब हो जाना जिसको हम मगरिब कहते हैं, तब भी इबादत करनी कि किसी तरीके से वापस आ जाए या नाराज ना हो हमसे। जब वो चला गया सूरज देवता, मगरिब हो गई, सूरज ढल गया, तो फिर जो आप देखें जो ईशा की नमाज है ना वो बहुत लंबी है, उसमें 17 रखते हैं। तो इसकी लॉजिक यही है कि तब दिल इनका ये जिन जहां से इन्होंने टाइम लिया है कि उनकी बात बता रही हूँ, इनसे 3000 साल 4000 साल पुरानी बात है ये वाली, जब सूरज की पूजा की जाती थी। यार तो हाइमा जी, ईशा के टाइम, हाँ जी, हाँ ये ईशा वाला कंप्लीट कर लो फिर मैं अपनी बात रखता हूँ जी। अच्छा ईशा के टाइम इन्होंने गिड़गिड़ा के रो के माफी मांगनी, लंबी उसको पुकारना देवता को कि आ जाओ। इसके बाद मैं तहज्जुद थोड़ा सा ऐड कर दूं, जब तहज्जुद का टाइम है ना तो उनका ये था कि वो जो है ना हमारा देवता वो सबसे करीब आके सुनता है। और इस्लाम में भी है कि जो अल्लाह है ना वो पहले आसमान पर आके आपकी बात सुनता है।
तहज्जुद टाइम। तो ये तहज्जुद का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सूरज परस्ती से मुंसलिक है। उस टाइम इबादत की जाती थी। फिर जैसे ही सूरज की आमद नजर आती थी ना, कि आसमान पे उफक पे वो रोशनी नजर आ जानी, तो फिर खुशी से खुशी सबने खुश हो जाना कि जी हमारी जो इबादत है ना, जो हमने की है सूर्य देवता के जाने के बाद, वो उसको पसंद आ गई है और वो वापस आ रहा है। तब फजर की नमाज, जिसको हम फजर कहते हैं, वो अपनी वो इबादत करते थे। तो नमाजों के औकात तक कॉपी पेस्टिंग है। अगर मैं हज का बताऊंगी तो हज भी सूरज परस्ती की तरफ ही जाता है। वो यूं घूमने का जो स्टाइल है ना, वो भी आपको उसी कौम की तरफ ले जाता है जहाँ पे सूरज परस्ती है। जी साहिल, आप क्या कह रहे थे आप? यार मेरे को तो लग रहा है कि आपने इतना नॉलेज आपने हासिल कर लिया है, और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि अब तक मैंने जितनी फीमेल एक्स मुस्लिम देखी है, मेरे ख्याल से हाइमा जी वो पहली एक्स मुस्लिमा होगी, और भी होगी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ इनकी इतनी बात सुन के, क्योंकि मैंने इनको पहले सुना नहीं था, फर्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यार ये तो पूरी नॉलेज की दुकान नहीं बल्कि पूरा गोडाउन है ये, और काफी कुछ इन्होंने अपना वक्त दिया है इस सारी चीजों को पढ़ने में, और इंटरेस्ट लेके पढ़ना ये बहुत बड़ी चीज होती है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो सलूट है आपको हाइमा जी, और जितने लोग देख रहे हैं, इनका जो चैनल है ये पूरी एक टीम है। आज ये तीसरा इंटरव्यू है, इनकी टीम मेंबर्स में से ये तीसरी है हाइमा जी। नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा वो और एक फीमेल जो है एक्स मुस्लिम आएंगी, उनसे भी हम बात करेंगे।